Hello student and friends, I am Nidhi and today we will discuss about the topic of genetic engineering. Okay, so first of all of you know who is the father of genetic engineering. Paul is the father of genetic engineering and for his work he get Nobel Prize in 1918. In 1918 he get Nobel Prize for his work. As the term genetic engineering, genetic means DNA and RNA. Okay, so in this technique scientists do changes at the level of gene in the DNA. What is gene? So all of you know gene is a small pieces of DNA that encodes स्पेसिफिक प्रोटीन्स. डीएनए काफ़ी सारे जीन्स से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है. ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट क्या करेंगे? जेनेटिक लेवल पर चेंजेस करेंगे. सो वी कैन से व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ मैन्युपुलेशन ऑफ जीन ऑफ डीएनए. Manipulation of gene of DNA is a genetic engineering, or we can say genetic engineering is a process of manipulation of genetic material of living organisms by inserting a desired gene through a starting the process of genetic engineering. We have to know about the term what is desired gene, what is our vector, and which type of enzymes used during the process of genetic engineering. Okay, first is desired gene. So desired gene वो DNA fragments हैं जिनकी हमें cloning करना है. Okay, what is it? Desired gene, desired gene to be cloned वे DNA fragments जिनकी हमें cloning करना है. Then what is vector? Vector is a carrier molecule. ये एक वाहक की तरह कार्य करेगा. ओके, कैसे कार्य करेगा? वाहक मीन्स कैरियर. और ये किसको कैरी करेगा? इस डिजायर्ड जीन को कैरी कौन करेगा? वेक्टर. सो वेक्टर इज अ कैरियर मॉलिक्यूल ऑफ डिजायर्ड जीन to be cloned. Vector is a carrier molecule जो कि कैरी करेगा अपने डिजायर्ड जीन को. ठीक है, और कहाँ ले जाएगा? होस्ट सेल के अंदर. इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं जिनमें से मेन एंजाइम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम and it used for cut DNA at specific site. Restriction endonuclease enzyme क्या करेगा? DNA को एक specific site से कट करेगा. Okay, so what is restriction endonuclease enzyme? Restriction endonuclease enzyme is also known as the molecular scissor. एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक सीजर की तरह किसी एक स्पेसिफिक साइट से कट करने का कार्य करता है. इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम. विच एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड इट ऑल्सो नॉन एज जॉइनिंग एंजाइम. Ligase enzyme used for the joining of two DNA segments, two different type of DNA segments joined by the use of DNA ligase enzyme. Now we discuss about the process of genetic engineering. Okay, so as you seen, this is the process of genetic engineering. Its first step is preparation of desired gene. Suppose to be this is a
होल जीनोमिक डीएनए ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ओके। और इस डीएनए का सिर्फ ये वाला सेगमेंट हमारा क्या है, डिजायर्ड जीन। दिस सेगमेंट इज डिजायर्ड जीन एंड फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का होल जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ट्रीटमेंट द्वारा स्पेसिफिक साइट से कट कर ऑब्टेन कर लिया जाता है, ओके। सो दिस इज आवर डिजायर्ड डीएनए पीस। Our next step is isolation of plasmid DNA. Second step is isolation of plasmid DNA. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, plasmid DNA is a carrier molecule that carry this desired gene into this host cell. Okay. Now our second step is isolation of plasmid DNA. Then again we treated this plasmid DNA by the restriction endonuclease enzyme, and this enzyme cut this plasmid DNA at a specific site, okay. Now this is our cut plasmid DNA and this is our desired gene, and by the use of DNA ligase enzyme, by the use of DNA ligase enzyme, we can join this desired gene fragment into the plasmid DNA. So this resulting DNA is known as recombinant DNA. This resulting DNA is known as recombinant DNA, and this recombinant DNA is also known as chimeric DNA. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, ओके। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। दिस इज आवर होस्ट सेल एंड इट्स आवर जीनोम recombinant DNA. Then our next step is multiplication and selection of clones. So after the multiplication we get so many copies of this host cell. Then we can do selection of bacteria carrying desired gene by antibiotic sensitivity test. Then clone amplified and isolation of protein. अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इट्स फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ओके। व्हाट इज डिजायर्ड जीन? डिजायर्ड जीन इज अ डीएनए फ्रैगमेंट दैट टू बी क्लोन, जिसे हमें क्लोनिंग कर उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना है, दैट इज डिजायर्ड जीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डिजायर्ड जीन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी काफ़ी सारी टेक्निक बाय द टोटल जीनोमिक डीएनए। सो इन दिस टेक्निक firstly we isolate the total genomic DNA of an organism, then we cut this genomic DNA into many small pieces by the use of restriction endonuclease enzyme. As all of you know, restriction endonuclease enzyme is a molecular seizure that can cut any DNA molecule with their recognition sequence. So रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इस टोटल जीनोमिक डीएनए में से डिजायर्ड जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ट्रीटमेंट द्वारा स्मॉल पीसेज में कट कर उसे हम फर्दर क्लोनिंग टेक्निक में यूज कर सकते हैं। बट दिस स्मॉल पीसेज कैन बी सेपरेटेड बाय द यूज ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, very important technique in molecular biology। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ हम वेरियस डीएनए फ्रैगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ उनके सेपरेशन में यूज़ करते हैं। सो
By the end of this technique, we separated the small piece of desired gene that use for cloning. Okay, next technique is by the use of mRNA. By the use of mRNA we can obtain our desired gene. कैसे प्राप्त कर सकते हैं? So all of you know what is reverse transcription process. What is transcription? So in our cell, formation of mRNA from DNA is known as reverse transcription. And यदि इस प्रोसेस को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, DNA to mRNA formation is known as the transcription. Okay, but यदि mRNA to dRNA का फॉर्मेशन होगा, that process is known as reverse transcription process. So by the process of mRNA to DNA formation is known as रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. इस प्रोसेस के थ्रू भी हम हमारा डिजायर्ड जीन प्राप्त कर सकते हैं. और ये जो डीएनए प्राप्त होता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या फिर इसे हम cDNA भी कह सकते हैं. क्लियर इट? सेकेंड प्रोसेस इज by the use of mRNA gene we can obtain our desired gene by the process of reverse transcription, and that product is known as complementary DNA. Our third step is synthesis by computerized machine. Okay, इस डिजायर्ड जीन को हम एक कंप्यूटराइज्ड मशीन जो होती है जिसे बोलते हैं डीएनए सिंथेसाइजर, और वी कैन से डीएनए मशीन. इस मशीन का यूज कर भी हम अपने डिजायर्ड जीन को प्राप्त कर सकते हैं. अवर सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए. सो ऑल ऑफ यू नो वेयर इज प्लाज्मिड फाउंड. प्लाज्मिड फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल. व्हाट इज प्लाज्मिड? Plasmid is the extra chromosomal DNA of bacteria. Okay, and this plasmid is used for the cloning technique. So this is a bacterial cell. This is chromosomal DNA of bacteria, and this chromosomal DNA के साथ साथ बैक्टीरिया में काफ़ी सारे स्मॉल साइज के प्लाज्मिड DNA प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्लोनिंग टेक्निक में यूज करते हैं. और व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? दिस इज अ कैरियर मॉलिक्यूल. इट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. प्लाज्मिड हैज अ अनलिमिटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज एंड इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज. इसे हम डीपली टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे. आवर नेक्स्ट and most important point is PSC101 plasmid is used for the cloning technique. Our next and third step is construction of rDNA. Here this is our rDNA. कैसे बनता है? Desired gene is inserted into this plasmid DNA and our resultant DNA is known as the rDNA. So desired gene inserted into vector and the resulting product is known as the rDNA, or we can say it's a chimeric DNA. Our next step is introduction of rDNA into the host cell. This is our rDNA and इस rDNA को host cell के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की जो टेक्निक है वो हम कैसे करेंगे? तो इसे काफ़ी सारे वेज में किया जा सकता है. अवर फर्स्ट टेक्निक इज वायर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. इन दिस टेक्निक बैक्टीरियल सेल इंटेक द rDNA इनटू द मीडियम बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी लोगों ने जेनेटिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है. सो बैक्टीरियल सेल rDNA को डायरेक्टली उनके मीडियम में लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.
Our second technique is by pathological agent. By the use of pathological agents like bacteriophage and agrobacterium, we can introduce this rDNA into the host cell. ये बैक्टीरियोफेज एंड एग्रोबैक्टीरियम डायरेक्टली rDNA को पिक कर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं काय के अंदर, हमारे होस्ट सेल के अंदर. अवर नेक्स्ट टेक्निक इज लिपोसोम फ्यूजन. ओके, सो प्लांट प्रोटोप्लास्ट एंड एनिमल सेल पिक अप rDNA in their liposomes. And our next technique is micro injection. In this technique, rDNA directly, by the use of a injection, rDNA डायरेक्टली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गन टेक्निक, इलेक्ट्रॉन गन टेक्निक का यूज भी इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट सेल में होता है. ये भी बहुत सिंपल सी टेक्निक है जिसमें डायरेक्टली हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर अपना rDNA इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. अवर नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट. सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट. सो rDNA का होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें क्या करेंगे, इस होस्ट सेल को कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं. सेल को क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे और ग्रो करने के बाद कल्चर प्लेट पर हमें काफ़ी सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज प्राप्त होती हैं. बट ये ज़रूरी नहीं कि सभी कॉलोनीज के अंदर हमारा rDNA प्रेजेंट. अवर नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन्स. ओके, सो जो ये डिजायर्ड जीन है इन द लास्ट वो एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. दैट इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर beneficial use. For example, insulin, human growth hormone and many more products can be produced by the use of the genetic engineering technique. Thank you.